अगर मैं क्रिकेट खेलता हूँ तो विराट कोहली फेम मिल रहा है। अपने आजू बाजू वाले 20 लोगों से पूछ लो, हार्डली एक आध जिमनास्ट का नाम किसी को पता हो। ऐसा नहीं है कि इंडिया में पैसा नहीं है, इंडिया करना नहीं चाहता। क्रिकेट इतना रेवेन्यू लाता है इंडिया के लिए, चलो वही बोल रहे हैं। क्रिकेट में आपको लगता होगा कि सारी टेक्नोलॉजी है। So, welcome to Podcast with Professionals. I'm your host, Keith Tiwari, and with us today, our esteemed guest, Mr. Jay Sampath sir, a senior tech enthusiast with years of experience under his belt. Jay sir's passion for technology is only matched by his deep love of sports. Having played multiple sports growing up, he credits much of his mindset, leadership, style, and problem-solving approach to the lessons he learned on the field. Whether it's breaking down a complex tech problem or analyzing a game-winning strategy, Jay sir brings energy, insight, a unique perspective to the table. Let's dive into his story and see how sports and tech came together in this world. So, sir, वैसे तो सब चीज़ें टेक आजकल का हम जो देख रहे हैं सब कुछ चल ही रहा है। आप अपनी तरफ से फ़ोकस कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल, एक स्पोर्ट्स पर्सन अपनी तरीके से एक फ़ोकस डाल रहा है। सो अगर आपका बैकग्राउंड देखा जाए तो बहुत ब्रॉड है और उसके में लेकिन सबसे पहले अगर एक क्यूरियोसिटी के अलावा अगर हम क्वेश्चन पूछे तो आपको क्या ऐसा मतलब लगता है कि जैसे फेवरेट स्पोर्ट्स आपको कौन-सा होगा? यार मैं growing up I played a lot of cricket, obviously like any other Indian kid, right? But हमारा स्कूल थोड़ा अलग था, तो आई हैव आल्सो प्लेड वॉलीबॉल, कबड्डी अ लॉट। कबड्डी मैं इतना अच्छा प्लेयर था नहीं, बट आई हैव स्टिल प्लेड अप टिल डिस्ट्रिक्ट्स इन कबड्डी। तो मुझे कबड्डी इज ऑलवेज क्लोज टू माय हार्ट। आई मीन अभी मैं खेल नहीं पाता ऑफ दिस रीजंस। एंड देन व्हेन आई मूव टू कॉलेज आई रियलाइज कि मैं क्रिकेट में इतना अच्छा नहीं हूँ, बट मुझे स्पोर्ट्स हैज ऑलवेज बीन वेरी आई मीन सेंटर ऑफ माय लाइफ। So I started playing TT, represented my university MSU from where I have graduated for a very long time. और फिर इंजरी के चलते आई लेफ्ट इट। मैं फिर भी अभी पैशनेट हूँ तो खेलता हूँ कुछ ना कुछ क्रिकेट वो खेलने खेला का। भी दिखे है। हाँ, ओके इससे अगर हम जैसे बात करें कि अगर आप एज़ अ स्पोर्ट्स टेक हो, तो आप मतलब जैसे अगर कोई भी टेक पे आप क्वेश्चंस जाते हो, तो कैसे आप उसको मतलब फोकस कैसे रखते हो? एज़ अ स्ट्रेटेजिस्ट या एज़ अ एनालिटिक या एज़ अ स्पोर्ट्स पर्सन या एज़ अ स्पेक्टेटर स्पोर्ट कैसे आप उसको देखते हो? Just to dissect, what you are asking is, do I look at How do you look at a sports tech if you're building an sport app? building or watching? Watching, sir. If you can mix it. So while I consume sport, and I consume quite a few, right? As we spoke earlier today also, right? So when I watch the sport, if my favorite team is playing, like a Barcelona is playing on a football, then I obviously at the heart I am a fan. But I've always been data driven all my life, both in my profession and as well as in personal life. So that analytical angle comes a little here and there. And surprisingly, I also study data. If कोई बड़ा match है, for example, if there is an F1 race happening, say for example in Imola, and I know that if Ferrari, which is my favorite team, wins the race today, we're gonna top the chart or top the table, on constructors or on a driver's table. Then I would study कि वो cornering speed क्या होती है, what was the track record, who took it, उनका car setup क्या था, downforce था. So थोड़ा analytical angle तो आ ही जाता है. But I'm still, when I watch, I don't bother myself or burden myself a lot. ओके सो बेसिक अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे सो वन स्पोर्ट प्रोडक्ट डू यू थिंक इज ओवररेटेड मतलब ऐसा टेक और अगर आप उसके अंदर होते जैसे इफ यू आर बिल्डिंग दैट ऐप और टेक देन हाउ वुड यू हैव डन डिफरेंटली So if overrated, see, high value innovation a lot. Okay, so I wouldn't call things too much overrated, but there are, for example, a lot of variables today. Okay, um, they are overrated. Why? And I'll contextualize my answer. I don't want to be stigmatized in my own profession, right? So, see, I what I think when, and I've spent 15 years in tech right now by now, and doing tech since way before I started my first gig. So what I feel, as a user, if whatever I am viewing on my app or a screen or a TV, whatever,
that is built for me. Personalization and contextualization of that data makes that product more usable. A lot of fitness trackers today lack that, कि वो ऐसा steps count कर लेते, but फिर क्या, what else? माने वो सिर्फ step count करने के लिए तो फोन ही काफी है. If it could be made a little personalized कि अच्छा मेरे बॉडी के हिसाब से या मेरे स्पोर्ट्स प्रेफरेंस के हिसाब से, अगर मैं प्रो एथलीट नहीं हूँ पर मैं बनना चाहता हूँ, तो ये ट्रैकर्स अगर मुझे कॉन्टेक्चुअलाइज डेटा दे कि आई वांट टू बी अ रनर, तो मेरे स्ट्राइक काउंट्स बेसिकली, जो आपका एप्पल वॉच बेसिकली करता है कि स्ट्राइक कितने हैं आपके, एंड वांट टू डू अ प्रो रनिंग, दे डू दिस स्ट्राइक योर. तो सर ऐसे जैसे टेक्नोलॉजीज़ में हम देखते हैं, तो टेक्नोलॉजीज़ में जैसे कि हमने एक जैसे लास्ट ओलंपिक्स में 2022 सॉरी बेग योर पार्डन 2020 ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में हमने देखा था कि फुजित्सु एक जैसे जिम्नास्टिक्स में यूज़ करते हैं। बहुत मतलब आई वाज़ टोटली कि यार ये यूज़ कर रहे हैं, हमारे इंडिया में अभी तक ये नहीं चल रहा, मतलब एक लो लेवल पे और जाएँगे और अगर हम नेशनल लेवल से भी देखते हैं, तो मतलब वो मेरे को मतलब अब आप जैसे कोई चीज़ देखोगे नहीं ये चीज़ होनी चाहिए, अगर उस लेवल पे वहाँ पे हो रहा है और वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ओलंपिक्स में सीधा। तो मतलब आप उसको कैसे लेते हैं? इंडिया में ये चीज़ें हो सकती हैं या फिर अगर कोई ऐप अगर ऐसा आ रहा है या फिर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? Er, what I feel, see, now you are asking an India centric question, right? See, the thing is, whenever a sport, either a sport or a profession gets popular in a economy, everyone wants to invest it. आपने जिम्नास्टिक की बात की. It is still, I believe, again, my personal opinion, it is still into a little bit of a nascent phase, as well as वो थोड़ा नीश स्पोर्ट है. माने हर कोई करना नहीं चाहता हाँ, वही और हर कोई कर भी नहीं रहा. कोच स्ट्रेंथ और वो नहीं स्ट्रेंथ तो सही है चलो। यार वो तो चलो सेकेंडरी हो गया, बट बिकॉज अगर मैं क्रिकेट खेलता हूं तो विराट कोहली फेम मिल रहा है. अगर आप अपने ऑडियंस पे पूछ लो, या अगर आप अपने आजू बाजू वाले 20 लोगों से पूछ लो, हार्डली एक आध जिमनास्ट का नाम किसी को पता हो, राइट? तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में पैसा नहीं है, इंडिया करना नहीं चाहती, बट इंडिया अभी राइट स्पोर्ट्स पिक करके और उन पे बैटिंग करती. फॉर एग्जाम्पल क्रिकेट इतना इतना रेवेन्यू लाता है इंडिया के लिए, चलो वही बोल रहे हैं, राइट? क्रिकेट में आपको लगता होगा कि सारी टेक्नोलॉजी है, यहाँ तक कि कंडीशनिंग कोच है जो ऐसा बोलता है कि तुम ऐसा टेस्ट मैच खेल रहे हो तो ये पॉकेट्स में जाए तो 2 रन भागना ही मत, डोंट ड्रेन योर एनर्जी, बिकॉज वो बाद में छक्का मारने को काम लगी, राइट? सही बात. वहां पे इतना इन्वेस्टमेंट हो क्यों रहा है? क्योंकि ए व्यूअरशिप, बी इकोनॉमिकली, यू नो फ्रूटफुल फॉर एवरीवन इन्वॉल्व्ड. माने ऑब्वियसली यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, बट अंटिल यू डू दैट, तो दूसरी दूसरी स्पोर्ट्स में इतनी पॉपुलैरिटी ना होने के चलते आई थिंक इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो रहे. ओके। सो सर एक है जैसे कि अभी मैंने एक जैसे लास्ट ओलंपिक्स आई हैव सीन रियो में देखा था शायद रियो में था आई गेस या फिर 2020 ओलंपिक्स में था। एथलेटिक्स में हमने देखा था कि एथलेटिक्स में रियल टाइम रिजल्ट्स आ रहे थे एथलेटिक्स में। उन्होंने मतलब ट्रैक्स पे ही लगा रखे थे और पर सेकंड की स्पीड जैसे उसेन बोल्ट की पहले 10 मीटर स्पीड थी, अगले 10 मीटर पे 60 मीटर स्पीड थी। तो सर ऐसा इंडिया में क्या आ सकता है? जैसे अगर गवर्नमेंट से अगर हम जैसे लेते हैं, हेल्प लेते हैं या फिर हम खुद से स्टार्टअप अगर कोई करता है, तो फिर मतलब क्या हो सकता है ऐसा? आई एम प्रीटी श्योर हो सकता है, बट अगेन इफ चलो आई सिट इन द चेयर ऑफ अ फाउंडर माई सेल्फ. क्या अगर मैं फाउंडर हूँ, मैं स्पोर्ट्स टेक में ऐसा कुछ बनाना चाहता हूँ, मेरा इंस्पिरेशन आपने जो एग्जांपल दिया वही, राइट? तो अगर मैं इंडिया के लिए ये गैजेट बनाना चाहता हूँ, ये सेंसर्स बनाना चाहता हूँ, तो व्हाट आई वुड थिंक इज अगे, यार देखो, धंधा धंधा है, ठीक है? तो बहुत है ऐसे। है ना? कि अगर पैसा डाल रहे हो तो पैसा बनना भी चाहिए. माने यू R&D नहीं करना है सिर्फ, उससे धंधा बनाना है. इफ आई हैव टू डू दैट और गो बाय दैट फिलॉसफी फॉर अ वर्च्यू, राइट? इफ देयर इज अ प्रोडक्ट मार्केट फिट अवेलेबल इंडिया में, ये जो आप सेंसर्स की बात कर रहे हो, ट्रैक और फील्ड पे इतना एम्फोसिस नहीं है. तो अगर मैं बनाता तो मैं कहाँ से टारगेट करता? मैं बनाता, मैं स्कूल्स पे फोकस करता. काफ़ी स्कूल्स आज की डेट में भी ऐसी है जो ट्रैक और फील्ड एथलेटिक्स को ज़्यादा महत्व देती है. अभी रिसेंट्स में बात करें सर तो अभी नेशनल रिकॉर्ड टूटा है अपना 10.20 था पहले अर्लियर इट वाज़ 10.23 बट इट वाज़ नाउ होल्डिंग बाय अ नेशनल प्लेयर ऑफ पंजाब आई गेस हाँ, गुरजिंदर आई गेस ऐसा कुछ नाम है उसका बट 10.20 उसका नेशनल रिकॉर्ड भी है। नाइस. तो वो एक अच्छी बात है
बट अभी भी ओलंपिक क्वालिफिकेशन के लिए 10.05 आई गेस जो ये के लिमिट सेट है वो होगा, वो भी होगा। अगेन सी इंडिया इज इन्वेस्टिंग, खेलो इंडिया कैंपेन जैसे चल रहा है, राइट? गवर्नमेंट इनिशिएटिव है। गवर्नमेंट आज की डेट में काफी स्कूल्स, एज आई सेड, काफी स्कूल्स एम्फेसिस कर रही ट्रैक एंड फील्ड को। अगर मैं ये प्रोडक्ट बनाता सेंसरी वाला, मैं ग्रास रूट लेवल से ट्राई करता पॉपुलैरिटी गेन करने भी, उससे मैं अगर वैल्यू जनरेट कर पा रहा हूँ अप एंड कमिंग बडिंग एथलीट्स के लिए, तो I'm pretty sure प्रोफेशनल्स पे भी उसकी नजर पड़ेगी, आज नहीं तो कल। देयर इज गोइंग टू बी रेजिलियंस एंड पेशेंस इन्वॉल्वड इन एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ कोर्स, बट या अच्छा, अगर आप जैसे इस चीज़ों की बात कर रहे हो, तो फिर जैसे आप कोई काम कर रहे हो, कोई आप ऐप बनाते हो, जस्ट इन केस, तो उसको ग्रोथ माइंडसेट से आप कैसे देखते हो? कि जैसे ये अगर आप जैसे होप्स हो कि इंडियन गवर्नमेंट के साथ आपका कोलैब होता है, फिर आप क्या ऐसा ग्रोथ माइंडसेट के साथ उनको आप बोलना चाहोगे कि नहीं, ये चीज़ें अगर आप रखेंगे, तो चीज़ें शायद या होपफुली हो कि इंडिया एक स्पोर्ट्स ग्लोबल स्पोर्ट्स पे एक उभरे। जैसे बहुत सारी चीज़ों को हम देख रहे हैं, जैसे फुटबॉल में अभी जो फेम मिलना चाहिए, वो मिल नहीं रहा है। लेकिन इवेंचुअली हम करेंगे, 20-47 का विज़न है हमारे पास। तो धीरे-धीरे करके फिर वो सब चीज़ों पे कैसे आप देखते हो सर उनको? सो ग्रोथ माइंडसेट इज फ्लैम्बोयंट वर्ड, लेट मी पुट इट दैट वे, राइट? वो डिक्शनरी का, एंटरप्रेन्योरशिप में डिक्शनरी का युवराज सिंह है ना? कि ग्रोथ माइंडसेट एंटरप्रेन्योर्स या कोई भी बडिंग प्रोफेशनल होता है जो जॉब भी करता है, राइट? सबको बोला जाता है ग्रोथ माइंडसेट, राइट? पर ग्रोथ माइंडसेट होता क्या है, अगर आप इफ यू जूम आउट अ लिटिल, राइट? मेरे लिए ग्रोथ माइंडसेट क्या है? लर्निंग। मैं 7-8-10 साल किसी स्किल पे अगर शिद्दत से मेहनत करता रहा, दैट learning the amount of time invested to hone my craft would also be considered as growth mindset. Where to apply that skill and how to generate value out of that skill is also growth mindset. And once that value is generated for someone, how do I scale that for masses? कि ज्यादा ऑडियंस के लिए कैसे मैं ये पॉडकास्ट डिस्ट्रीब्यूट कर पाऊँ, फॉर एग्जाम्पल, दैट वुड ऑल्सो बी अ ग्रोथ माइंडसेट। अगर अब उसको स्पोर्ट्स के साथ आप compare or parallel बनाना चाहिए, if I have to draw a parallel for this with sport, I would opt for a team sport rather than an individual sport. टीम स्पोर्ट जब खेला जाता है तो उसके बीच में ब्रेक्स होते हैं, स्ट्रैटेजिक ब्रेक्स T20 में होते हैं, तो फुटबॉल में हाफ टाइम होता है, तो बास्केटबॉल में आप टाइम आउट्स ले सकते हो और क्वार्टर्स के बीच में भी चाहिए हो। वहाँ पे जो पिवट्स बेसिकली हम वो बिजनेस में भी हम काफ़ी पिवट करना पड़ता है, जस्ट टू अडप्ट टू what are the changing situations and circumstances and market currents, क्या चल रहा है आज की डेट में, उस ढांचे में डलना जरूरी है धंधे को ग्रो करने के लिए। दैट adaptability and humility to change yourself in a fluid move is what growth mindset for me would be, अगर मैं पैरेलल ड्रॉ करना चाहूँ स्पोर्ट्स से उसका। ओह! सो अगर जैसे हम अभी इस पे बात करें ग्रोथ पे, तो जैसे कि एक वाइटल पॉपुलेशन है, जैसे कि हम देखें कि डेवलप्ड कंट्रीज़ में और अंडर डेवलप तो नहीं कह सकते, डेवलपिंग नेशंस में जैसे हम बोल सकते हैं, इंडिया और बाकी देशों में बात करें, तो वहाँ का जो टेक है, स्पोर्ट्स टेक हब है, तो क्या उस तरीके की चीज़ें, जैसे हम इंडिया में बात करें कॉन्टेक्स्ट अगर इंडिया का लेते हैं, तो क्या चीज़ें उस तरीके से आज नहीं तो कल, जैसे कि मैं लॉन्गर टर्म पे बात करूँ, तो जैसे बहुत सारे ऐप्स हैं, बहुत सारे गैजेट्स भी आ रहे हैं, टेक्नोलॉजीज़ भी आ रही हैं, ग्रो अप हो रही हैं। तो क्या जो लेवल अभी यूएस का है, अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा ओलंपिक्स में कितने मेडल्स आते रहते हैं उनके, ठीक है? अभी उसके बाद इंडिया जिस लेवल पे खड़ा है, तो क्या वो ग्लोबल रीच इंडिया अभी लेकर आ सकता है आने वाले फ्यू ईयर्स में? आपको बात करें 10 इयर्स और प्रोबब्ली 15 इयर्स में, क्या ला सकता है? I think government is investing huge right now in tech, right? इसमें भी सेलिब्रेट में भी बहुत आया। स्पोर्ट्स एंड टेक पे काफी इन्वेस्टमेंट चली रही है। इनफैक्ट देयर आर, वी हैव बिड फॉर ओलंपिक्स आल्सो, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? 2036 अगर वो ओलंपिक यहाँ आता है, फॉर एग्जाम्पल, इफ वी विन द बिड, right, which I'm pretty sure and I hope touch wood we will, if and when it happens, you'll start seeing the smaller investments in pockets that government has done start taking shape and form into very big magnitude. छोटे छोटे पॉकेट्स में, जैसे फॉर एग्जाम्पल अहमदाबाद की हम बात कर ले, अहमदाबाद में जो फ्लाईओवर्स है उनके नीचे इनने वो छोटे छोटे कोर्ट्स बनाए जहाँ पे यू कैन गो एंड प्ले टेबल टेनिस, यू कैन गो एंड प्ले बैडमिंटन। एटलीस्ट ऑडियंस उनको इंटरैक्ट करे। हाँ। हर एक, आई थिंक कल्तेज में है, शिला में है, भोपाल में, दे हैव क्रिएटेड दोज हब्स वहाँ जहाँ पर वॉलीबॉल खेल सकते हो,
थोड़ा रनिंग वगैरह कर सकते हो. Those investments I think are strategic investment. I may be wrong because I have not only seen that in Gujarat or in Ahmedabad. Well, I travel for various purposes across India also today. सारे छोटे बड़े शहरों में ऐसी ही स्पोर्ट्स फैसिलिटीज गवर्नमेंट इनिशिएट कर ही रही है. तो जिस हिसाब से हम जा रहे हैं उसी पेस से अगर हम चलते रहे तो I'm pretty sure we will grow and we will gradually see it. अगर ओवरनाइट नहीं होगा, ओवरनाइट हम स्टेरॉइड पे सक्सेस नहीं चाहते. नहीं. I think as a country also we don't need it. मैं जब भी मैंने कुछ स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट भी किया है तो मेरा हमेशा फाउंडर्स के साथ यही इंटरेक्शन होता है कि डोंट बिल्ड एग्रेसिवली ऑन स्टेरॉइड्स. ऐसा पैसा डाल के कस्टमर्स लेने की ट्राई मत कर. वेलकम बैक. ग्रेजुअली करो, अपनी प्रोडक्ट को अच्छा करो. तो हम एज ए कंट्री ऑल्सो शुड फोकस ऑन दिस कि स्किल्स को बेटर करेंगे, छोटे छोटे स्ट्राइड्स लेंगे और ग्रो करते हैं. तो हाँ सर, ये बात आपने सही की. तो अगर जैसे हम इस पे भी बात करते हैं कि जैसे कि स्पोर्ट्स जैसे टेक्नोलॉजीज़ हैं, अभी हाल फिलहाल मैंने बहुत देखी है. तो क्या इसको एक्सेलरेशन पे रखना चाहिए? मतलब एक गवर्नमेंट अगर कुछ भी चीज़ कर रही है, कुछ अच्छा अगर ये स्पोर्ट्स को डेवलप करने के लिए, टेक लाने के लिए, तो क्या इस अभी एक चल रहा है, एक फेज़ चल रहा है कि धीरे-धीरे करके आ रहा है. तो बट अगर मैं या कोई अलग इंडिविजुअल देखता है, स्पोर्ट्स पर्सन देखता है, जैसे हमने बहुत बार सुना है कि यार क्या चल रहा है, इतना काम नहीं कर रहा है, बहुत धीरे काम कर रहा है. तो क्या एक एक्सेलरेशन पे हमें पैर रखना चाहिए? वी शुड पुट आवर लेग ऑन द पेडल ऑफ एक्सेलरेशन कि मतलब चलेगी, जल्दी करो भाई, जल्दी करो, कुछ तो करो. I think if I were someone who could make such decisions, मैं ये करता कि देखो आज यार आपको लगता है धीरा काम हो रहा है, बट व्हाट इज द डेटा व्हेन यू से दिस, राइट? अगर मैं गवर्नमेंट में ऐसी पोजीशन पे होता कि ये डिसीजन मेरे हाथ में होता तो आई वुड स्टार्ट पब्लिसाइजिंग व्हाट आई डू. कि जैसे आपने नितिन गडकरी जी का इंटरव्यू सुना हो कि मैंने इतने किलोमीटर्स बना रोड बना दी, मैंने ये टनल बनाया, मैंने हाईवेज बनाए. रेल मंत्री आज भी बोलते हैं, हर साल बोलते हैं कि हमने ये व्हाट दे आर डूइंग, दे आर मार्केटिंग, राइट? हमारी जो टेक इंडस्ट्री है वो मार्केटिंग पे काफी चलती है. ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, इंडिया का टेक काफी अच्छा है और मार्केटिंग उससे भी अच्छा है. तो मैं ये फंडामेंटल्स रिवर्स अप्लाई करूंगा. हम काफी चीजें स्पोर्ट्स से सीख के एंटरप्रेन्योरशिप प्रोफेशन में लेके आते हैं, राइट? कि तुम जॉब करते हो तो हमें ये सिखाया जाता है रेजिलियंस सीखो, क्रिकेट से, फुटबॉल से, राइट? हमें ये सिखाया जाता है टीम वर्क सीखो, राइट? मैं उल्टा इसमें अप्लाई करना चाहूंगा कि मैं पब्लिक प्राइवेट सेक्टर से मार्केटिंग सीख के मैं स्पोर्ट्स के लिए एज गवर्नमेंट क्या कर रहा हूँ वो मैं हर स्टेट के लिए पब्लिश करूँ. छोटी यार एड दे दो. आज भी गवर्नमेंट कितनी एड्स देती है, बहुत देती है ना. आप रेलवेज़ पे जाओगे, एयरपोर्ट्स पे जाओगे, वहाँ पे जहाँ चलते रहते हैं वहां पे पब्लिश करो कि इस बार हमारी गवर्नमेंट की स्काउटिंग टीम ने 18 कबड्डी प्लेयर उत्तराखंड से स्काउट की. इवन अगर सर आप स्काउटिंग की बात करो या फिर अब इसका मार्केटिंग की बात करोगे तो इफ यू सी आईपीएल स्काउट्स हैं, फिर उनको दिखाते रहते हैं कई प्लेयर्स हमने यहाँ गए, 10 साल से लग गए हैं, 5 गए हैं. तो वही ना, सी अब मैं आप फ्रेंचाइजी पे चले गए, आपको मार्केटिंग जब भी मैं बोलूंगा ना आप सीधा प्रोफेशनल पे चले जाओगे, प्राइवेट ही सोचोगे, कभी भी पब्लिक सेक्टर नहीं सोचोगे. तो इफ आई वर द वन मेकिंग डिसीजन आई वुड डू द रिवर्स ट्रांजिशन कि प्राइवेट सेक्टर से मार्केटिंग सीखो और एज गवर्नमेंट मार्केटिंग करो. ओके. तो एक क्वेश्चन ये भी था पुट अप था ऑडियंस में से कि जैसे अगर जस्ट फॉर केस ऑफ इंडियन कि अगर हमारे पास से 48 घंटे मान लो, 48 घंटे और 3 ऐसी टिप्स हो आपके पास कि मेरे को ये पुट अप करना है, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, तो वो क्या होंगी? स्पोर्ट्स ऐप में या टेक में अगर हम बात करेंगे तो? सो व्हाट यू आर आस्किंग इज कि 48 घंटे कोई टेक बनाओ और वी डू हैव ओनली 48 आवर्स लेफ्ट और अब हमें इसके बाद डिलीवर करना ही करना है कि हम इसके 49th आवर नहीं जा सकते, 48 आवर पे हम डिलीवर करना है. हैकेथॉन बोलते हैं हमारे वर्ल्ड में उसे, बट ओके ठीक है, समझ गया. ओके सर. सो हैकेथॉन अगर मैं करूँ आज और स्पोर्ट्स टेक थीम लेके चलना है ना यार, मैं व्हाट आई वुड डू, कैमरा देख के यही दिमाग में आ रहा है कि व्हाट आई वुड हैव डन और व्हाट आई वुड डू इज जस्ट क्रिएट अ स्मॉल ऐप व्हिच इज एआई एनेबल्ड. देखो आज जैसे हमने थोड़ी देर पहले ग्रास रूट लेवल की बात करी कि उस टाइम पे मैंने बोला कि मैं सेंसर्स बनाता, मैं ग्रास रूट से चालू करता. हाँ. तो मेरे पास लर्निंग और फेलियर के चांसेस बड़े लेवल पे ना हो, मैं वहां पे सीख लूंगा तब जाके बड़े लेवल पे जाऊँ. सिमिलरली आई वुड स्टिल फोकस ऑन ग्रास रूट लेवल. जब मैं मेरा गांव, आई एम वेरी ब्लेस्ड एक्चुअली,
तो मेरे गाँव में काफ़ी सुविधाएँ थी, बट मैं बहुत छोटे गाँव से आता हूँ, ठीक है? वहाँ पे मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे, जो स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा करते थे, बट वो गाँव में कोचेस नहीं थे। That was a harsh reality. आज भी नहीं हो। ये भी बहुत है You know, अभी। urbanization so much, right? Everyone wants to move out from that small village to earn better for their family, right? Make better, a better life for their family, give better comfort and luxury to their family. तो वो वहाँ पे नहीं है possible. And it's a harsh reality, right? तो मैं एक ऐसा ऐप बना था जो वहाँ के जो एथलीट्स हैं, उन उनको रिकॉर्ड कर पाए और उनको कोचिंग टिप्स दे एआई के जरिए। फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिकेटर हूँ, 10 साल का बच्चा हूँ, तो मेरा स्टैंस वो रिकॉर्ड कर ली और आई यूज़ एआई टू अंडरस्टैंड कि अच्छा, देयर स्टैंस इज़ नॉट प्रॉपर, दिस पोज़ीशन इज़ बेटर, मे बी दे ओपन अप द स्टैंस एंड यू आर द एक्सपर्ट, यू नो बेटर, बट आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह ओके। सर एक मेरे को उससे कॉन्टेक्स्ट में एक और चीज़ याद आती है, जैसे कि अगर हम लोग जैसे देखते हैं, देयर आर वेरियस लीग्स रनिंग थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है? एनबीए है, एनएफएल है, आईपीएल है, देन कबड्डी की भी लीग चल रही है, हॉकी की भी लीग चल रही है, इवन खो-खो की भी आ गई। तो इवन नॉट अगर हम एक प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं कि कोई एक इंडिविजुअल ना इसको ड्रिवन करते हुए, अगर अगर ये जैसे फ्रेंचाइज़ीज़ हैं, अगर यही आपको लगता है कि मैं आपसे ऐसा पूछना चाहूँगा कि क्या ऐसा लगता है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए कि ये फ्रेंचाइज़ीज़ ही खुद के एक ऐप डेवलप करें ऐसा करके? जैसे कि मैंने एक देखा है एमआई में है, मैं आई डू पर्सनली फॉलो एमआई मुंबई इंडियंस, तो वो एक ऐप है उनके पास जिसमें वो मतलब प्लेयर का प्रोफाइल आप डालोगे ना, तो अब नाम डालोगे खाली उसका सब कुछ आ जाएगा, मतलब डिटेल्स, डेटा सब कुछ आ जाएगा। जितने प्लेयर्स उन्होंने रखे हुए हैं सब कुछ। तो ऐसा क्या जो लीग्स और फ्रेंचाइज़ीज़ हैं उनको खुद से इन्वेस्ट करना चाहिए? आपको क्या लगता है इस पे? यार, मेरे हिसाब से तो देखो, सारी जैसे आपने एमआई का बोला ना, आई थिंक सारी ही फ्रेंचाइजीज़ के खुद के ऐप्स होते ही हैं। यार देखो, इस आंसर को मैं दोनों साइड से प्ले करके, राइट? क्यों बनाना चाहिए, क्यों नहीं बनाना चाहिए? आप एमआई फॉलो करते हो। एमआई जो मुंबई इंडियंस की पेरेंट कंपनी है, वो करीब-करीब 10-12 टीम्स ओन करती है। हाँ, राइट। कै केप टाउन में भी है, फिर उनके यूएस में भी। नॉट ओनली क्रिकेट, दे हैव एन एंटायर बिग स्पोर्ट्स पोर्टफोलियो, राइट? अब हर एक हर एक माइक्रो टीम बेसिकली जैसे एमआई हो गई, वो एक ऑडियंस को कैटर करती है। जैसे आप एमआई के फैन हो, तो आपके जैसे काफ़ी हज़ारों लाखों फैन हैं, राइट? डेफिनेट्स। हाउ डू आई गेन माय पॉपुलैरिटी? मर्चेंडाइज सेल्स, टिकट स्पॉन्सरशिप्स, एटसेट्रा, एटसेट्रा, राइट? तो मैं डेटा को अभी मोनेटाइज़ करता हूँ। जो आप बोला आपने, द एग्जांपल दैट यू गिव, राइट? आई ओपन द ऐप, एमआई ऐप, आई पुट इन हार्दिक पांड्या, आई सी देयर स्टैट्स, देयर डेटा, राइट? इट्स मोनेटाइजिंग डेटा। अभी मोनेटाइज नहीं कर रहे, अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा टू गेन ऑडियंस। आई एम प्रीटी श्योर लेटर ऑन मे बी प्लेयर का डेटा बेच के तो नहीं कमाएंगे, आई एम प्रीटी श्योर, बट दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन है टू रीच टू योर फैंस एंड अंडरस्टैंड द साइकी ऑफ द फैंस बेटर, राइट? तो अगर कोई स्पोर्ट्स टीम ओन करता, मैं डेफिनेटली बनाता, जस्ट फॉर मार्केटिंग पर्पसेस टू रीच टू माई ऑडियंस। अब कब कहाँ नहीं बनाना चाहिए? मान लो आपने खो-खो की बात कही, यार उनका ऑडियंस रीच ही नहीं है इतना बड़ा, राइट? तो क्यों उसमें हेवीली इन्वेस्ट करें? उससे अच्छा खो-खो एसोसिएशन अपना खुद का बनाए और पहले वो डिस्ट्रीब्यूशन करे, राइट? जैसे आई थिंक एमएलबी ने या तो एनएफएल, एमएलबी ने ही शायद किया था। एनएफएल सबसे। ईदर ऑफ देम, दे बिल्ड देयर टेक फर्स्ट, देन दे मोनेटाइज दैट। डिज्नी ने कुछ छीना, कुछ कुछ बिलियन डॉलर्स में वो खरीदा है टेक उनका पूरा, ठीक है? तो वो फ्रेंचाइज ड्रिवन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल नहीं था, वो लीग ड्रिवन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल। और उसके बाद ऑब्वियसली हम उस लीग की, अब दे डोंट हैव एनी क्लोज के इधर इज अ कॉन्फ्लिक्ट, तो अभी लीग की सारी टीम्स भी कर रही है, अपने अपने एप्स बना रही है, अपनी वेबसाइट बना रही। तो जहाँ पे छोटी लीग्स है, आई थिंक अगर छोटी लीग्स है तो हाइब्रिड मॉडल में चलो, ये पहले लीग को पॉपुलर बनाओ, फिर टीम्स पे फोकस करो। और बड़ी लीग्स है तो गो द रिवर्स वे आल्सो, इट डजंट हैव। ओके, तो सर हमने बात करी हुई इन सब चीज़ों की, डोमेन्स की। तो बट जैसे अगर कोई इंडिविजुअल स्पोर्ट्स टेक में आ रहा है, न्यू है, न्यू भी आप कैसे समझ लो कि मतलब ही हैज़ बीन स्पेंडिंग 1 और 2 इयर्स इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो अब उसको आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि अगर स्पोर्ट्स में वो बना रहा है, तो स्पोर्ट्स टेक या स्पोर्ट्स ऐप के लिए? अगर वो कुछ बना रहा है स्पोर्ट्स टेक या स्पोर्ट्स ऐप के लिए, तो मैं उसे बोलूँगा कि यार पहले तो स्टडी स्टडी कि तुम प्रॉब्लम करना क्या चाहते हो सॉल्व,
right? Just figure that one problem out that you want to solve and do the best that you can to solve that, right? Don't go after building an Amazon day one, right? Just do one thing, do that best. Second thing to probably focus would be कि how better you are attractive than the rest of them. Like, जैसे आप कुछ सॉल्व करना चाहते हो, I'm pretty sure किसी और ने कुछ तो ट्राई करा ही होगा मार्केट में। तुम रिसर्च करोगे, किसी में कम कंपटीशन होगी, किसी में ज्यादा होगी सही, तुम पहले तो नहीं होगे, राइट? तो जस्ट फोकस ऑन हाउ डू यू बिकम बेटर, माने अनरिस्पेक्ट द कंपटीशन। थोड़ा रिस्पेक्ट करो कंपटीशन को, उनने भी टाइम दिया है, पैसा लगाया है, रिस्पेक्ट करो, सीखो उनसे, उनके लिए बुरा मत करो, बट उनसे अच्छा बढ़ा, यू नो। ऐसे इन थर्ड वुड बी कि तुम्हारा फोकस कैसे होगा टू गेन ऑडियंस, कस्टमर्स कहाँ से लाओगे, जो कस्टमर्स है उसको रिटेन कैसे करोगे। ये 3 चीजें अगर if you know as a founder, as a not only sports tech but otherwise also as a founder, if you know these 3 things, I'm pretty sure you're solved. मैं भी अभी फिगर आउट कर रहा हूँ मेरी लाइफ में, बट आई थिंक चीजें होती हैं, हाँ ही रास्ते पे। ओके, तो सर जैसे अगर अभी जैसे ये सारे टैक्स चल रहे हैं, आपको कैसा लगता है कि ये एज़ अ पर्सपेक्टिव ऑफ कोच अगर आप देखोगे, कि कोचेस के लिए और एथलीट्स के लिए कैसे मतलब बेनिफिशियल हो रहा है? और फिर अगर नहीं हो रहा तो क्या चीज़ें होनी चाहिए जो ऐड होनी चाहिए इसके अंदर? यार बैक इन द डेज जब मेरे कोच सर दोनों स्कूल में भी थे मेरे कोच, और जब मैं कॉलेज में टीटी खेलता था तब भी 3 कोचेस थे मेरे, जो यूनिवर्सिटी के थे, मेरे पर्सनल ट्रेनर्स नहीं थे, यूनिवर्सिटी से कोच थे। और उनमें और आज की डेट में मैं अगर डिफरेंस देखूं कोचेस की लाइफ, राइट, तो आज की डेट में रिसेंटली आई वेंट टू सम कॉलेज फॉर समथिंग वेरी पर्सनल। वहां पे मैंने देखा यार, कोचेस, वो छोटी कॉलेज है, उन कॉलेज के कोचेस के पास भी डेटा है। अनफॉर्चुनेटली हमारे टाइम में इंस्टिंक्ट्स पे कोचेस ज्यादा रिलाई करना करना पड़ रहा था, बिकॉज उनके पास इतना डेटा था नहीं। और ऐसा नहीं था कि उनको करना नहीं था, उनके पास डेटा की एक्सेसिबिलिटी ही कम थी, राइट? उनके पास कितना डेटा होगा कि जिन बच्चों को वो ट्रेन कर रहे हैं या कोच कर, लिमिटेड सिंपल स्मॉलर सैंपल साइज, so they don't know on how, like for example I used to play TT, right, and they know how a ball would spin I if my posture and shot is in a certain fashion, right, or my swing is in a certain fashion, but they wouldn't know in what climatic condition it would have, right? बहुत ही हाइपोथेटिकल सिनेरियो है। अ, मैं अभी पढ़ रहा था कहीं पे, यार नॉर्वे हैज अ स्पोर्ट्स फैसिलिटी जो सबसे एक्यूरेट क्लाइमेट देती है, ऐसा आर्टिफिशियली क्लाइमेट भी देती है। अब नॉर्वे का वैसे ही बहुत प्लेजेंट क्लाइमेट है, वहाँ पे उन्होंने कुछ तो ऐसा सेटअप बना है जहाँ पे फील्ड एंड ट्रैक एथलीट्स जाके ट्रेनिंग कर सकते हैं, एंड इट गिव्स यू नियर परफेक्ट वेदर कैसे? सिचुएशन, वेदर एंड द टेरेन टू प्रैक्टिस ट्रेन, राइट? अब वो किसी ने तो डेटा देख के ही सोचा होगा कि अच्छा दिस इज परफेक्ट, परफेक्ट है क्या? तो मुझे लग रहा है कि आज की डेट में कोचेस के पास सबसे बड़ा हथियार डेटा है। वो जितना रिसर्च कर पाए उतना ज़्यादा मिल सकता है, और खुद से अगर जनरेट करना है तो काफ़ी इजी, वो भी छोटे टूल्स, नॉर्मल नोट्स बना के भी जनरेट किया जा सकता ओके, तो सर अभी एक चीज़ और जैसे कि अभी डेवलप जिससे भी डेवलप कंट्रीज़ कह लें या फिर डेवलपिंग नेशंस कह लें, इसमें जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप हो रहा है धीरे-धीरे करके नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, चीज़ें लोग सीख रहे हैं। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि जैसे कि जितू ऐप पहले नहीं था, बट अब है, अब लोग एक अगर हम बोलेंगे एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोच भी है वो एक ऐप पे निर्भर हो रहा है कि नहीं भाई मेरे को इसमें से देख के काम करना पड़ेगा कि अगर मैं कुछ नहीं करता हूँ तो शायद मेरा पैर छूट जाएगा पीछे। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ें क्या सिखा रही हैं एक इंडिविजुअल को एक कोई और भी जैसे स्पोर्ट्स पर्सन या एथलीट है, तो वो क्या सीखेगा जैसे अपकमिंग ईयर्स में या फिर कोई कोच अगर होता है तो वो क्या सीख सकता है इसके अंदर से? है। अडेप्टेबिलिटी, अडैप्टेबिलिटी। मेरे हिसाब से अडेप्टेबिलिटी, जैसे जैसे आपने जैसे बताया कि मैं एज ए कोच
मैं निर्भर हूँ ऐप पे जो आपने बताया, तो हाँ हूँ। और अगर मैं ये फॉलो नहीं करता तो मेरा एथलीट पीछे छूटेगा। और एज ए कोच आई एम प्रीटी श्योर उनको थोड़ा तो बुरा लगता ही होगा। आई मीन यू गाइस आर कोचेस, आई एम नॉट, बट इफ एज ए मेंटर, इफ आई एम वर्किंग विद माय कलीग्स, तो यार मुझे तो बहुत ही सिंपली लगता है कि मैं उनको, अगर मैं, मेरे पास डेटा है, मेरे पास टेक्निक्स दूसरों से भी सीखने की है, तो मैं क्यों ना यूज। एडेप्टेबिलिटी वुड बी वन वर्ड आंसर। डेफिनेटली सर। मेरे को एक और क्यूरियोसिटी बोलते हैं ना अंदर से, एक था कि जैसे सब में मैं देखता हूँ अदर स्पोर्ट्स, मतलब स्पोर्ट्स तो नहीं कह सकते, फील्ड में, तो इसमें ऐसा मैं बोल पूछना चाहूँगा अपने आप से कि आप जैसे एक टेक गाई कितना कमा सकता है, अगर जैसे एक देखा जाए एनुअल, अगर आप एनुअली बता सकते हैं इसमें, अगर इन्वेस्ट अच्छा कर रहा है या फिर जो भी अपने हिसाब से एक बार आप बताइए। माने यू आर नॉट आस्किंग स्पोर्ट्स, यू आर आस्किंग टेक। हाँ, टेक गाई इन स्पोर्ट्स अगर वो वेरी इन स्पोर्ट लिया, मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट आई एम प्रीटी श्योर यार डेटा एनालिस्ट वगैरह जो अच्छी फ्रेंचाइजी है, मान लो कोई बड़ी फुटबॉल क्लब है या बड़ी क्रिकेट क्लब है, बड़ी है यार, छोटी नॉर्मल स्टेट लेवल क्लब्स जो रणजी क्लब्स है, रणजी के जो है मैटेरियल, हाँ। जो सपोर्ट स्टाफ होते होंगे, उनमें भी अच्छा खासा पे होता होगा। अच्छी क्लब्स के लिए तो स्काई इज द लिमिट, बट बेयर मिनिमम छोटी क्लब्स के लिए भी आई थिंक 20-22 लाख कहीं जाए, अगर आपके पास वो टेक बैकग्राउंड है जिससे आप एथलीट की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो, फ्रेंचाइजी की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हो, या तो गेम इंप्रूव करवा सकते ओके। सर एक और क्वेश्चन था ऑडियंस में से ही कि जैसे कि आने वाले टाइम में जो स्पोर्ट्स अपना जो टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, इससे कोचिंग पे क्या असर पड़ने वाला है, उनके टैलेंट आइडेंटिफिकेशन पे क्या पड़ने वाला है, उनकी शेपिंग पे क्या असर पड़ने वाला है, मतलब उनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे क्या असर पड़ सकता है? जैसे कि अभी अभी जैसे लास्ट 2-3 ईयर्स हम छोड़ दें, कोविड के बाद की बात करें, कोविड के बाद की बात करें तो एआई जितना हेल्प कर रहा है, स्पोर्ट्स जितने ऐप्स ये हेल्प कर रहे हैं, तो इससे एक इंडिविजुअल की लाइफ पे क्या असर पड़ रहा है? एक कोचेस की लाइफ पे क्या असर पड़ रहा है? उससे क्या सीखने को मिल रहा है उनको? लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन में बात कर रहा हूँ मैं, 2-3 साल नहीं, लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन पे क्या असर पड़ रहा है उनके? और क्या-क्या सीख सकते हो आगे चीज़ें इनसे? जी। यार एक एग्जांपल लेके बात करते हैं ना, तो एक F1 रेस होती है, उसमें लैप्स होते हैं। 20 दिन, जिस दिन संडे को जब रेस होती है, तो कुछ रेस छोटी होती है, कुछ रेस बड़ी होती है। माने रेस ट्रैक छोटे होते हैं, रेस ट्रैक बड़े होते हैं, डिपेंडिंग ऑन रेस ट्रैक उसके लैप्स लगते हैं। अब आप कोच और प्लेयर का पूछा आपने, मैं इसी एग्जांपल पे आपको कोच और प्लेयर दोनों का देता हूँ, ठीक है? सो जो एथलीट होता है, जो ड्राइवर होता है, बेसिकली F1 ड्राइवर, अब वो आप समझ लो कि दैट एंटायर रेस इज देयर लाइफ टाइम, ऐसा समझ लो कि वो एक रेस है, वो उस एथलीट का पूरा लाइफ, एक रेस जो भी 50 लैप हो गए, 55 लैप हो गए, राइट? एंड उसको जो उसका एक रेस इंजीनियर होता है, जो उसका रेस इंजीनियर है, उसको 10-12 लोग अलग अलग डेटा भेजते रहे, ठीक है? और वो रेस इंजीनियर है, वो आप मान लो कोच, वो एक ही बंदा ड्राइवर से बात करता है, आप ऐसा समझ लो कि रेस इंजीनियर है, वो आपके एथलीट से बात कर रहा है, तो रेस इंजीनियर अपना कोच हो गया, ये आपका एथलीट हो गया, F1 ड्राइवर, ठीक है? अब हर एक लैप, अब एक लैप होता है, उसको 3 सेक्टर में यूजुअली डिवाइड किया जाता है, सेक्टर 1, सेक्टर 2, सेक्टर 3, और हर एक सेक्टर इसके ज़ोन्स होते हैं कि अच्छा, यहाँ पे स्पीड ट्रैप है, यहाँ पे आउटवर्ड कॉर्नर है, यहाँ पे इनवर्ड कॉर्नर है, यहाँ पे एसेस है, यहाँ पे शिकेन है, टाइप्स, ओके? और सारे टर्न्स के डायमेंशंस और स्पेसिफिकेशंस अलग होते हैं। कोई टर्न्स पे कर्व होता है, कोई टर्न्स पे ग्रास होता है, कोई टर्न्स पे ऐसे ही सिर्फ रो रो कंक्रीट हो जाता है, ऐसा एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है? अब एक लैप मान लो 1 मिनट और 42 सेकंड में किसी ड्राइवर ने खत्म किया और वो टॉप पे है, तो जो सेकंड पे ड्राइवर है ना, वो सीधा उसके इंजीनियर से पूछ रहा है कि मैं कौन से सेक्टर में या कौन से टर्न पे कितना टाइम गवा रहा हूँ मेरे अगले वाले से, वो बताओ। बस। अगर आपके एग्जाम्पल में कोच को ये छोटी-छोटी जो माइन्यूट डिटेल्स हैं, वही एथलीट को देनी है, वो या तो डेटा से आ सकती है, या प्रैक्टिस से आ सकती है, या दोनों से आ सकती है। तो मेरे हिसाब से ये एग्जाम्पल से मैं आपको ये ट्राई कर रहा हूँ समझाने की, कि ये जो छोटी-छोटी चीज़ें, इफ यू वांट टू बी प्रो एथलीट, मैं कभी बन नहीं पाया, और उस बात का मुझे काफ़ी अफ़सोस भी, बिकॉज़ आई यूज्ड टू लव स्पोर्ट्स, राइट? बट अगर मैं आज देखूँ कि
मेरे फैमिली में कोई है जो अच्छा खेल रहा है, तो अगर एज ए नॉन स्पोर्ट्स पर्सन बट एज ए टेक पर्सन इफ आई हैव टू उसको मुझे 2 बातें बोलनी है तो मैं यही बोलूँगा कि हर छोटी चीज़ों पे फ़ोकस करें। बड़ी चीज़ होगी, अगर तुम हर रोज़ छोटी-छोटी चीज़ को इम्प्रूव करोगे ना, तो बड़ी चीज़ होगी। जैसे ये है मामा मेंटालिटी बुक राइट? कोबे ब्रायंट राइट? कोबे स्टार्टेड हिज डे एट 3 एएम, 4 एएम टाइप्स काफ़ी इंटरव्यूज़ आप पढ़ोगे। इन इंटरव्यू यस सर। वो क्या बोलते थे कि मैं चैंपियनशिप फील्ड पे कभी नहीं जीतता। मैं चैंपियनशिप जीतता था जिम में। मैं 2 बजे 3 बजे जाग के 2 घंटा जिम करता था, वापस आता था, फ्रेश होता था, 5 बजे वापस जाता था। 5:30 6 बजे लोग आना चालू करते थे, व्हिच मीन्स हर एक दिन में मैं 2 ढाई घंटा उनसे आगे हूँ। मान लो अगर साल में 100 दिन ही सारे एथलीट्स को अलाउड है जिम करना, तो मैं साल के 200 घंटे ऑलरेडी आगे आगे हूँ, व्हिच इज़ 10 डेज़ फॉर दैट मंथ 10% आगे। और 10 साल में मैं 1 साल हमेशा आगे रहूँगा इनसे। वो मेंटालिटी आपको करनी पड़ेगी। ओके। तो सर एक चीज़ नेक्स्ट अगर क्वेश्चंस पे हम जाएँगे तो जैसे कि व्हाट इज़ द मेजर डिफरेंस अगर हम बोले ना कि एक मेजर डिफरेंस है डेवलप्ड कंट्रीज़ में और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ या डेवलपिंग नेशंस में, क्या स्पोर्ट्स टेक में आप देखते हो कि ये मेजर डिफरेंस यहाँ पे है जिसकी वजह से शायद हमारा देश या फिर आने अभी टाइम लगा सकता है और या फिर धीरे-धीरे करके और इसमें टाइम लगाएगा चीज़ों में? यार आई हैव अ वेरी कॉन्ट्रारियन ओपिनियन ऑन दिस ओके? मैं इंडिया को डेवलप्ड नेशन मानता हूँ, ओके? बिकॉज़ मेरा प्रोफ़ेशन ऐसा है। आज इंडियन टेक टैलेंट की काफ़ी वैल्यू है वो और आगे आने वाले समय में भी रहने वाली है। तो मेरा आंसर थोड़ा बायस्ड रहेगा, आई एम सॉरी अबाउट इट। खुद आते मैं इंडिया को डेवलप्ड नेशन के उसमें ही गिन रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं देख रहा हूँ व्हेन आई वाज़ भले मैं चलो प्रो एथलीट नहीं था, तो मैं एथलीट तो था, मैं आज भी खेलता हूँ। जब मेरे गाँव में मुझे एक अच्छी पिच नहीं मिलती थी, हम कंक्रीट पे खेल लेते थे। हमारे अगल-बगल वाले स्कूल में मिला के 3 पिचेस थी जो प्रॉपर पिचेस है, जो मैं थोड़ा हायर लेवल पे प्ले करना चाहूँगा, खेलना चाहूँ, तो वो पिचेस मुझे मिले। वैसे ही पूरे गाँव में 3 पिच थी, राइट? आज अगर मैं देखूँ, अहमदाबाद ले लो आप, ठीक है? अहमदाबाद में यू वांट कि मुझे इस हिसाब से पिच पे प्रैक्टिस करनी है, आपको कल मिल जाएगी। 5 जगह पे ढूँढने से, गूगल करने से, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। सिमिलरली मेरा गाँव जो है इतना अभी काफ़ी बढ़ गया है, राइट? इट्स अ टाउन। वहाँ पे पीपल हैव डन गवर्नमेंट हैज़ डन क्वाइट अ फ्यू थिंग्स। पिचेस बनाए हैं, जहाँ वहाँ जाके आप खेलो, प्रैक्टिस करो। तो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट काफ़ी बना रही है। इंटेंट गवर्नमेंट नहीं दे सकती, वो आपको खुद को ही लाना पड़ेगा। प्रो एथलीट का जो इंटेंट होता है, माइंडसेट होता है, वो आपको खुद को बनाना है। बाकी गवर्नमेंट अपना काम कर ही रही है। ओके, तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर मूव करें तो व्हाट आर द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस मतलब टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस ऐसे क्या-क्या हुए हैं जिसकी वजह से एक स्पोर्ट्स फील्ड जो है बहुत हद तक अलग हो चुकी है अभी अगर हम वे बैक करें 10 साल पहले की बात करें और अब बात करें। यानी इन शॉर्ट टर्म्स में अगर कोविड से पहले और कोविड के बाद, तो कितना टेक्नोलॉजिकल इन्वेंट हो चुका है टेक्नोलॉजी की हम अब अलग तरीके से देख रहे हैं हर चीज़ों को। यार ग्लोबली चलो इंडिया से चालू करते हैं। मेरे पास आंसर इंडिया वाला है इसीलिए मैं इंडिया से चालू करना चाहता हूँ। यार आई थिंक अर्ली 2010 इश वाज़ द फर्स्ट वेव ऑफ स्पोर्ट्स टेक इन इंडिया। हुँ। जहाँ से गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स चालू करे। अर्ली 10s क्या माने 2007-8 के बाद आप सोच लो, ठीक है? उसके बाद आई थिंक a lot of retired sports or athletes, sports person or athletes started doing their own things. I think अनिल कुंबले का एक ऐप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ 2000 मिड 2010s में 14-15 अराउंड काफी पॉपुलर हुआ था, जो एक स्टिकर होता था बेसिकली कि जो आप बैग पे लगा दो, ठीक है? प्रैक्टिस और आपका बैट स्विंग देखेगा, आप कौन से हॉटस्पॉट से आपके बॉल जहाँ पे हिट कर रहे हैं, यू नो आपका रिस्ट प्रॉपर्ली मूव कर रहा है। आई थिंक देयर वर सर्टेन थिंग्स, अभी वो टेक भी काफ़ी इवॉल्व हो चुका है। आई थिंक दैट्स वन। सो प्री-कोविड, जस्ट प्री-कोविड, आई थिंक दैट
boost of tech from India had started in sports. Then I think things that changed, all big organizations started investing into it. Just say, I think if I'm not wrong, one of either Wipro or Infosys did build some tech for some big league. Okay, tennis pe या football pe. They had built the sensors for जैसे हॉकाई है, हॉकी में वेरी सिमिलर टेनिस के लिए आई थिंक इन दोनों क्रिकेट में भी यूज करते हैं सर हॉकी को। माने हॉकाई क्रिकेट का ही एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। क्रिकेट में जो हॉकाई हॉकाई है वो पहले एक्चुअली आई थिंक दूसरे स्पोर्ट्स में आया था एंड वो शायद इंडिया की कोई टेक फॉर्म ने पहले पॉपुलरली बनाया। ऑब्वियसली वी वर एन आउटसोर्सिंग, वी हैव एन आउटसोर्सिंग से। तो प्री कोविड आई थिंक बूस्ट मिल गया था, बट वो डीप पॉकेट्स के लिए होता था। पोस्ट कोविड अगर हम देखें, हम अहमदाबाद में रहते यार, हम अपने अगल बगल में देखते, राइट? क्रिक हीरोज आई थिंक पोस्ट कोविड तो इमेंसली पॉपुलर हुआ है, बहुत प्री कोविड भी था ही, बट आई थिंक पोस्ट कोविड इट हैज पिक्ड अप रियल पेस, व्हिच गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी यार। जब व्हेन आई केम हियर, मैं बड़ौदा जब पढ़ता था और उससे पहले जब गांव में रहता था, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट ऑलमोस्ट एवरी डे। यहाँ आके मुझे पता ही नहीं था, मेरी कॉलेज इतनी बड़ी थी नहीं कि जहाँ पे वो सबकी स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज हो, तो जाए कहाँ? तो आज मैं क्रिक हीरोज डाल के जा सकता हूँ कहीं पे मैच बुक करने। तो आई थिंक एक्सेसिबिलिटी ऑफ टेक हैज इम्प्रूव्ड पोस्ट कोविड एंड द फाउंडेशंस वेयर लेड प्री कोविड बाय बिग ऑर्गेनाइजेशंस। आई थिंक छोटी स्टार्टअप्स हम जैसे लोगों ने ह्यूमनाइज करने के लिए हम ये सब ऐप्स है, आप क्रिक हीरोज ले लो, एटलीस्ट हमारे अगल बगल में गुजरात में आई थिंक क्रिक हीरोज ह्यूमनाइज्ड और मेड एटलीस्ट स्पोर्ट्स टेक जितना ज़रूरत होता है उतना एक्सेसिबल, भले वो डिस्ट्रीब्यूशन में काम करता है, वो एथलीट की लाइफ में वैल्यू यही ऐड करता है कि आपको फैसिलिटीज़ मिल जाए, आपको प्लेयर्स मिल जाए, आपको ट्रेनिंग की जगह मिल जाए। बट जो डिस्ट्रीब्यूशन उन्होंने पॉपुलराइज करा कि मैच कहाँ चल रहे हैं, ब्रॉडकास्टिंग आप सिर्फ आईपैड से कर सकते हो या आपके खुद के स्टैट्स वहाँ पे दिखेंगे, यू नो दैट्स अ वाओ फैक्टर। यू नो 10वीं पढ़ने वाला बच्चा अगर वो बोल सके कि मेरे एज ग्रुप में मैं सबसे ज़्यादा एवरेज कर रहा हूँ, तो उससे अच्छी क्या चीज़ है यार वो पहले एक्सेसिबिलिटी नहीं थी बट हाँ एक्सेसिबिलिटी। चीज़ और सर जैसे कि मैंने टेक्नोलॉजीज़ को देखा है इन्वेंट होते मतलब यूज़ होते हुए बहुत ज़्यादा। इंडिया में उतना नहीं देख रहा हूँ मैं। और अदर देन क्रिकेट अगर हम बात करें, क्रिकेट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। फिर अदर दूसरे गेम में जैसे कि मैं एक वॉलीबॉल का एग्ज़ाम्पल लूँगा। तो वॉलीबॉल में जैसे जापान में यूज़ करते हैं, वो लोग रोबोट्स यूज़ कर रहे हैं, वो लोग शूट मतलब मतलब स्मैश करते हैं वो लोग तो उसको रोकने के लिए। तो इंडिया में भी क्या हम ऐसे देख सकते हैं कि जैसे लो बजट क्योंकि फंडिंग का एक इश्यू जो मेरे को लगता है शायद हो सकता है। बट आपको क्या लगता है कि वो ऐसी चीज़ें गैजेट्स वगैरह हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? यार दिस इज एन इंट्रिगिंग क्वेश्चन। यार कर तो सकते हैं, ऐसा नहीं कि हम कर नहीं सकते कुछ, ठीक है। हाँ, बनाने के लिए अगर चैलेंज किया जाए तो इंडियन कुछ भी बना ले, ठीक है। तो वो तो चैलेंज मुझे नहीं लग रहा है। आई थिंक मार्केट फिट का थोड़ा चैलेंज तो मैं बोलूँगा है, मेरे हिसाब से। थिंक मैं बेचूँ कहाँ है यार? मैं बना ला, चल हम दोनों ने मिलके बना लिया। तुम्हारा स्पोर्ट्स का बैकग्राउंड, मेरा टेक का है। हम एक तीसरा कोई मैकेनिकल या इंजीनियरिंग वाला बंदा ले लें कि जो ऐसा रोबोटिक आर्म बना दे हमें। बनाना तो वही है, राइट? तुम टेक्निक सिखा दो, मैं सॉफ्टवेयर सिखा देता हूँ, वो एक आर्म बना ले रोबोटिक आर्म। बेचे कहाँ? Where do I sell that, right? So that's going to be a challenge. I think it's not about it's about time. Okay, as I said, if we make that Olympic bid come true, अगर इंडिया में ओलंपिक आता है, जो आप एग्जांपल दे रहे हो, ऐसे 50 जो हमने सोचे भी नहीं है, वैसे स्टार्टअप मार्केट में आ जाए। मार्केट में आ ही जाएंगे। फाइनल फेज में आते हैं सर, जो सबसे एक रैपिड राउंड मैं वो करवाना चाहूँगा मतलब आप जैसे आप स्टार्ट कर रहे हो उधर से आप उधर से आंसर फायर होते रहे कोई सा ओके। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, फेवरेट स्टेडियम आपका? एमसीई। एमसी मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, अभी वो रिनोवेशन में भी जा रहा है। ओके, मोस्ट क्लच एथलीट? यार मेरे हिसाब से तो माइकल जॉर्डन, माइकल शुमाकर, so मेरे हिसाब से वो दोनों। ओके, ड्रीम स्पोर्ट स्पोर्ट टेक? हम्म यार एक ड्रीम स्पोर्ट्स टेक का, आई डोंट नो, मैं अगर कुछ बना पाता, मुझे खेलने का वो अंश शौक, तो मैं ऐसा ऐसा एम्पी थिएटर जैसा बना लेता, जहाँ पे मैं ऐसे कुछ लगा के मेसी के साथ खेल रहा हूँ या यूनो फेडरर के साथ खेल रहा हूँ, अगर मैं उस लेवल का होता तो। बट आई थिंक दैट वुड हैव बीन एन इनोवेशन दैट आई वुड बिल्ड।
Okay, your favorite sport? यार वही इन सीक्वेंस क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, F1। ओके, तो ज़्यादा वक़्त ना लेते हुए इस पॉडकास्ट को हम यहीं पे ख़त्म करेंगे जय सर के साथ, क्योंकि सर ने जो भी चीज़ें बताई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर उसके टेक के बारे में जो भी बात करी, वो डेफ़िनेटली एक ऑडियंस के तौर पे या फिर एक स्पेक्टेटर स्पोर्ट के पर्सपेक्टिव से काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। और अगर आपको भी कोई ऐसा चीज़ है या फिर मतलब ऐसा कोई इश्यू आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो ज़रूर हम नीचे मेल आईडी हम मेंशन कर रहे हैं, उसके अंदर आप डाल सकते हैं। थैंक यू, विल सी यू नेक्स्ट पॉडकास्ट।